انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے عمل کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کے ذمہ دار عناصر کی سرکوبی کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کالے دھندے میں ملوث افراد کو پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ججا گینگ کی گرفتاری قابل تحسین ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی سے عوام کے لیے بڑے ریلیف کی تیاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد قوم کو آگاہ کریں گے، مجموعی طور پر مہنگائی میں مزید کمی ہوگی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ خیبر پختونخوا میں 9 خارجی جہنم واصل، سیکورٹی فورسز کی ضلع محمد میں کارروائی۔ فتنہ الخارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک، شدید فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی شاہ بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر قربان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 2 خارجی مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کی کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کی ستائش۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ حوالدار محمد زاہد شہید اور سپاہی آفتاب علی شاہ شہید کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر صحت کا صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر پولیو کا دورہ، صحت حکام کی پولیو کی موجودہ صورتحال، ویکسینیشن مہم اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ۔ وزیر صحت نے ویکسین سے انکاری خاندانوں کے مسئلے پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیو کا مکمل خاتمہ قومی ترجیح ہے، پولیو فری پاکستان کے لیے مزید جدید اور مربوط حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہے، سید مصطفیٰ کمال۔ غیر قانونی مقیم افراد اور افغان شہریت کارڈ رکھنے والوں کو ملک چھوڑنے کی مہلت میں 16 دن باقی۔ 1 اپریل سے ملک بدری کا عمل شروع ہوگا۔ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت سہولیات کے بھرپور انتظامات۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری، شمالی غزہ میں تازہ حملوں میں 12 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بیت اللحیہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 9 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر اسرائیلی ٹینکوں کی شدید شیلنگ، شہادتوں کا خدشہ۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں قابض افواج کی کارروائیاں، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینی گرفتار۔ یمن کے دارالحکومت پر امریکہ کے فضائی حملے، 31 افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ حملے صنعاء کے نواحی علاقوں میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے۔ حوثی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور طاقتور فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حوثیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ان کے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں 1798 کا ایلین اینیمیز ایکٹ نافذ کر دیا۔ اقدام کا مقصد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کو ہدف بنانا ہے۔ اس قانون کے مطابق دشمن ملک کے شہریوں کو بغیر سماعت کے کیے ڈپورٹ کیا جا سکے گا۔ اس سے قبل اس قانون کا 1812 میں ہونے والی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے دوران اطلاق کیا گیا تھا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی ٹی 20 سیریز، کرائسٹ چرچ میں پہلے میچ میں میزبان نیوزی لینڈ کی 9 وکٹ سے کامیابی۔ قومی ٹیم 18.4 اوورز میں 91 رنز بنا کر آؤٹ، صرف 3 کھلاڑی ڈبل فگرز میں جا سکے۔ جیکب ڈفے کی 4 اور کائل جیمیسن کی 3 وکٹس۔ کیویز نے 92 رنز کا ہدف 10.1 اوورز میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل کو ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن، ٹرافی کا سفر جاری، کراچی کے کارٹنگ ارینا کی سیر، ریسرز خوشی سے نہال۔ ٹرافی 29 مارچ تک 11 شہروں کا سفر کرے گی۔ آج 2 روزہ دورے پر لاہور لے جائے گی۔ پی ایس ایل کا انعقاد 11 اپریل سے 18 مئی تک ہوگا۔ راولپنڈی، کراچی، لاہور اور ملتان میزبانی کریں گے۔
इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी और ब्राइटन एंड हाउ एल्बियन के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एस्पविच टाउन को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ईपीएल के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एसी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एटीपी मास्टर्स थाउजेंड्स इंडियन वेल्स आलमी नंबर 3 हिस्पानिया के कार्लोस अल्कराज का सेमीफाइनल में सफर तमाम। अल्कराज को बरतानिया के जैक ड्रेपर ने हराकर पहली मर्तबा मास्टर्स थाउजेंड्स के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में जैक ड्रेपर का मुकाबला डेनमार्क के होल्गर रियोन से होगा। सेमीफाइनल में होल्गर रियोन ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त दी थी। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में टॉप सीड जनूबी कोरिया के एनसी यंग का मुकाबला सेकंड सीड चीन के वांग ही से होगा। खवातीन के सेमीफाइनल में सेकंड सीड चीन की वांग की हमवतन हानजू को शिकस्त। मेंस डबल्स के फाइनल में कोरिया के किम वोन हू और सियो सियोंग जे इंडोनेशिया के लियोरोली कार्नेनो और बागास मोनाका के मध्य मुकाबले होंगे। दूसरा वो जो बादशाह से डरता है और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस उरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना है। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामों की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा। पीटीवी होम और डिजिटल पर रमजानुल मुबारक के महीने में मारूफ तारीखी तुर्की ड्रामा बारबरोसा उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है। नाजरीन की जानिब से भरपूर पजीराई। बारबरोसा का इंतखाब नाजरीन के लिए एक मुस्बत तफरीही और तालीमी तजुर्बा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दोपहर 12 बजे के खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा मलिक। मैं हूँ रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत का पुख्ता आज़म है कि इंसानी स्मगलिंग के घिनौने धंधे का मुकम्मल कलाकमा किया जाएगा। मुतल्लिका इदारे इस जुर्म के बेखुनी के लिए दिन रात मेहनत करें। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर वफाकी तहकीकाती इदारे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारान की पजीराई करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार अनासर की सरकोबी के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। FIA और IB के अफसरों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जज्जा गैंग की गिरफ्तारी लायके तहसीन है। उन्होंने मुतलका अफसरान की आला पेशावराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासिर की सरकोबी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लायके तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है। बल्कि बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया करने के जिम्मेदार हैं। इस मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। उन्होंने कहा कि घिनौने धंधे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान को कौम की तरफ से शाबाश देता हूँ। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए और दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएं, तो मैं समझता हूँ कि कौम
आपको बहुत दुआएं देगी और आपको बहुत इज्जत मिलेगी। इस मौके पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जजा गैंग की गिरफ्तारी में आला कारकर्दगी के हामिल IB और FIA के 6 अफसरान को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक्स और एजाजी शील्ड्स दी। 9 मार्च को FIA ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जजा ग्रुप के इंतहाई मतलूब सरगना उस्मान जजा को गिरफ्तार किया था, जो गुज़िश्ता साल यूनान के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की अमवात के मरकजी जिम्मेदारों में से एक होने के अलावा इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक 19 केसेस में मतलूब था। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया और जल्द बिजली की कीमतों में खातिर कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतें साबिका सतह पर बरकरार रखने का मकसद इसका पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रद्दोबदल के फ़र्क से पैदा होने वाली माली गुंजाइश और दीगर इक़दामात से बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार है, जिसका ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में कर दिया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर भी पड़ेगा और महंगाई में कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस रिलीफ के हवाले से जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, खैबर पख्तूनख्वा में 15 मार्च को अलग अलग ऑपरेशंस में 9 ख़वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 7 ख़वारिज जहन्नम हासिल हुए। शरीर फायरिंग के तबादले के दौरान धरती के 2 बहादुर सपूतों हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। एक और मार्का डेरा इस्माइल खान के ज़िले मद्दी में हुआ, जिसमें 2 खारिज मारे गए। हलाक होने वाले खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जो दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मोहम्मद और डेरा इस्माइल खान में फितना खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरों और एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की है। उन्होंने ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह को खराज अकीदत पेश किया और शोहदा की बुलंदी दराजात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के फरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बहादुर जवानों और उनके अहल खाना पर पूरी पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों और उनके अहल खाना पर कौम को फ़ख्र है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। और IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब के प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान और IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की है। पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जों को कम करने के लिए सख्त माशी फैसले किए और बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इस्लाहात की हैं। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि माशी शरह नमू को बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया गया है। क्लाइमेट रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुज़ाकरात किए गए। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल बातचीत जारी रखेंगे। इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में लागत कम करने, सेहत आमा की बेहतरी, तालीम के फ़रोग़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई है। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मौजूदा हुकूमत पायदार माशी इस्तेहकाम के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। तफसील बताएंगे फ़हद अज़ीज़। वज़ीर आज़म की क़यादत में काबीना ने सख्त फैसले तो किए, लेकिन इन फैसलों के बदौलत आज मुल्क को मौशी इस्तेहकाम मिला है और आम आदमी तक समरात पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुल्की मईशत में बेहतरी का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया गया है। आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है।
जिससे मुल्क में सरमायाकारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बैरून मुल्क से फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसलात ज़र मौसूल हुई। वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा माली साल में तरसलात ज़र बुलंद तरीन सतह पर रहेंगी और मजमूई तौर पर 36 अरब डॉलर मौसूल होने की तवक्को है। तिजारती खसारे में नुमाया कमी वाक़ हुई है। स्टॉक एक्सचेंज ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। स्टॉक मार्केट में 52,000 से ज्यादा सरमायाकारों ने सरमायाकारी की है। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को फाल बनाने के लिए इकदाम किए हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता क़याम है। क्रिप्टो काउंसिल मुल्क में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासों के फरोग और ज़ाब्ता कारी की जानिब एक नुमाया पेशरफ्त है। काउंसिल क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिए मौसर पॉलिसी साजी, जदीदियत के फरोग और महफूज मालियाती निज़ाम के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। बरामदात पर मबनी मईशत का फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मौशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पॉलिसी इस्लाहात और इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान की मईशत मुस्तकबिल करीब में मजीद बेहतर होने की तवक्को है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल की तामीर से इलाके में नए ज़रीबाब का आगाज होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। महफूज शहीद केनाल से चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने में मदद मिलेगी। जो बंजर ज़मीनें थी पंजाब में, वो ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे आबाद की जा रही हैं, और ये इसका फ़ायदा ये होगा, अगर पॉजिटिवली हम ये सोचें कि भाई जो पानी समंदर में चला जाता है और ज़ाया हो जाता है, वो पानी अगर यहाँ की काश्तकारी के लिए काम आ जाए। जनूबी पंजाब के अवामी नुमाइंदों ने महफूज शहीद केनाल की तामीर को वक्त की ज़रूरत करार दिया है। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪੈਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਆਬਾਦ ਥੀ ਸਨ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਥੀ ਸਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜ਼ਾਇਆ ਥੀ वेंदे, तो बेहतर है कि ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ रकबा बंजर पे, थल पे, चोलिस्तान पे, तो इतना नवे रकबे आबाद थी सन और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਥੀ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲਾਬੀ ਜਾਹਰੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੁੜੇਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਵੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल बेहतर हो सी। महफूज शहीद केनाल की तामीर से दरियाए सतलुज में भारत की आबी जारियत को रोकने में भी मदद मिलेगी। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर मुआसात अब्दुल अलीम खान और वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा में मोटरवे पर पिंडी दास इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़रा ने कहा कि फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाने वाले इस मुल्क के खैरखा नहीं हैं, हमें अपनी फ़ौज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुफियान। शेखुपुरा में कोट पिंडी दास इंटरचेंज M2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इस इंटरचेंज से पूरे इलाके के लिए तरक्की का नया रास्ता खुल गया है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें फौज ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर अवाम की जानें महफूज की। हमारा फर्ज है कि हम अपनी फौज के छाना बशाना खड़े हों। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि फौज को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारा ये है कि हम सब मिल के अपनी इस फौज के पीछे खड़े हों। किसी के लिए कुर्बानी देना इतना आसान नहीं है। अगर आप देखें तो हज़ारों की तादाद में हमारी अफवाज और हमारी पुलिस ने अपने लोगों के जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। आज ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उनसे कोई एक दफ़ा पूछे, इतनी जुर्रत है कि अपने बच्चे को कुर्बान कर सको इस मुल्क के लिए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो मुल्क दिवालिया हो रहा था। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और जज्बे से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। उन्होंने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में इस इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि फौज की वजह से मुल्क महफूज है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। जब पहले हुकूमत हमारी आई 16 महीने, उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, लेकिन वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रात दिन एक करके दुनिया भर में जाके मुस्लिम दोस्त ममालिक को कायल किया और डिफॉल्ट होने से उसको बचाया। दूसरी तरफ वो लोग हैं
जो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। गद्दार वो पाकिस्तान के गद्दार हैं जिन्होंने IMF को खत लिखे। इससे कबल वफाकी वुज़रा ने कोट पिंडीदास इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। इंटरचेंज पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, फेंस और गाड़ियल समेत टोल प्लाजा का काम मुकम्मल किया गया है। मंसूबे के हवाले से वफाकी वुज़रा को ब्रीफिंग भी दी गई। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का दौरा किया। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोढर ने वज़ीर सेहत को पोलियो की मौजूदा सूरत हाल, वैक्सीनेशन मुहिम और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने पोलियो के कतरे न पिलवाने वाले खानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कौमी मुहिम में फ्रंट लाइन वर्कर्स और ज़िला इंतजामिया के किरदार को भी सराहा और कहा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मज़ीद जदीद और मरबूत हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर सेहत ने रवा साल के 6 में से 4 पोलियो केसेस सिंध से रिपोर्ट होने पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कराची के सेवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मुसलसल मौजूदगी पर तशवीश है। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कम्युनिटी मैनेज इंगेजमेंट और वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ। इजलास में दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सूबे में जारी अवामी फलाही मंसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने की, जबकि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इजलास में शिरकत की। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 16 रोज़ बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस आने वालों के लिए खुराक और सेहत सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। शुमाली गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक बैतुल्लाहिया पर इसराइली ड्रोन हमले में कम अज़ कम 9 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में सहाफ़ी और इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। हमलों में जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया है। जनूबी शहर खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने शदीद शेलिंग की है, जिसमें शहादतों की इत्तलात हैं। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी काबिज अफवाज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। लेबनान के जनूबी इलाके पर भी इसराइली फोर्सेस ने बमबारी की है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया। लेबनान की वजारत सेहत ने हमले में हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइल ने जनूबी शहर यातर पर बमबारी की है। उधर अमरीका ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। दारुल हुकूमत सना और सादा पर अमरीकी बमबारी में 31 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाइया ने यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर 40 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए। दारुल हुकूमत सना पर 9 हमले किए गए, जिसमें 15 शहरी हलाक हुए। बमबारी में हवाई अड्डे के करीब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीकी जंगी तैयारों ने सादा पर तकरीबन 12 हमले किए, जिसमें 15 शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन फौजी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि हौसियों का वक्त खत्म हो गया है और अब उनके साथ वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जो बाइडेन पर तनकीद करते हुए कहा कि साबिक अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल काबिल रहम तौर पर कमज़ोर था, जिसके लिए हौसियों ने अपने हमले जारी रखे। हौसी बागियों ने हमलों पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अपने एक बयान में कहा कि हमले हमें फ़लस्तीनियों की हिमायत से बाज नहीं रख सकते। हमास ने भी यमन पर अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमरीकी हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं और हौसियों को फ़लस्तीनियों की हिमायत की सजा दी जा रही है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के इस इक़दाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम ट्रेंडी अरागुआ को हदफ बनाना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगी हालत का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि दुश्मन मुल्क के शहरियों और मकामी अफराद को बगैर समात किए डिपोर्ट कर दिया जाए। इससे कबल इस कानून का 1812 में होने वाली जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम के दौरान इतलाक़ किया गया था। एलामिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम के नतीजे में वेनेजुएला के तमाम ऐसे शहरी जिनकी उम्र 14 बरस या इससे ज़ायद हो और वो TDA के रुकन हो, अमरीका में मौजूद हों और अमरीका में कानूनी तौर पर मुस्तकिल शहरियत ना रखते हों तो उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क से निकाला जा सकेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़े कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान, भारत और हकीकी कश्मीरी क़यादत के दरमियान एक देरपा और नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल की ज़रूरत पर जोर दिया है। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि तनाज़ा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए तनाज़ा कश्मीर के तारीखी हक़ाइक़ को छुपाने और एक झूठे बयानियों को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल खित्ते में कशीदगी का बायस है। दूसरी जानब जिनेवा में कश्मीरी वफ़द ने जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और भारतीय फोर्सेज के इलाके में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और काले कवानीन को जबर के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुकर्रिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल पर जोर दिया कि वो कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की हालत इज़हार का नोटिस लेकर इनकी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान उसी रोज कायम हो गया था जिस दिन पहले मुसलमान ने बर्र सगीर में कदम रखा। हिजरत के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम की कई दास्तानें मौजूद हैं। इन दास्तानों में से एक कहानी नसरीन अजहर की है, जिन्होंने हिजरत के वक्त की मुश्किलात को बयान करते हुए कहा कि बर्र सगीर पर अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद से ही मुसलमानों का इस्तेसाल शुरू हो चुका था। 1857 की जो हुई थी ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया दिल्ली पे और हर जगह हम लोग हार गए, तो फिर उसके बाद एक तरफ तो उन्होंने मुसलमानों को समझो डिस्क्रिमिनेट किया। दिल्ली में तकरीबन मुसलमानों के घर में लाइब्रेरी होती थी और वो अंग्रेज़ों ने आके सारी जलाई और उन्होंने लूट मार किया और पूरी आबादी को उन्होंने दरबदर कर दिया। कायदे आज़म से एक दफ़ा हम मिले थे और उन्होंने वहाँ खड़े होकर बस उन्होंने हमसे बातें की कि अच्छा तुम लोग मेरे से मिलने आओ, सो यू पीपल हैव कम टू सी मी। और उस वक़्त सारे लोग जो थे जो मुस्लिम लीग की तरफ थे या मुसलमान, तो वो कायदे आज़म को बहुत अच्छा समझते थे। 23 मार्च कौमी हम आहंगी और यकजहती की तजदीद। आज भी ये दिन तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी, बलोची या सराइकी, मुत्तहद करके इस वतन की पहचान दिलाता है। 23 मार्च की मुनासबत से बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी, सराइकी सब ने मिलकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि ये हमारा वतन है, हमारी हर खुशी, हर कामयाबी इस वतन के नाम है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाना है। ये हम सब का पाकिस्तान है। आज कैप्टन अहमद बदर शहीद की पहली बरसी है। वो 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में वतन अजीज का दिफा करते हुए शहीद हुए। कैप्टन अहमद शहीद 5 बहनों के इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। उनके पसमानदगान ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जान वतन और पाक फौज पर निछावर की। शुक्र है अल्लाह ने उन्हें रोज़े की हालत में शहादत अता की। उनकी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। शुहदा हमारा फ़ख्र और कौम के लिए बायस इत्तेहाद हैं। और इराकी स्पेशल फोर्सेस की पाकिस्तान में तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत की अख्तामी तकरीब मुनक्किद हुई। पाक फौज ने इराकी फौज की दरख्वास्त पर उनकी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को तरबियत देने का फैसला किया। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तरबियत में ताउन 1955 से जारी है। पाक फौज इराकी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को मजीद तरबियत देगी। पाकिस्तानी अस्करी इदारे खित्ते में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और इंसदारी दहशत गर्दी तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
ہاتھوں سے معذور 22 سالہ باہمت محمد قاسم نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان ناکام جسمانی معذوری سے نہیں بلکہ ذہنی معذوری سے ہوتا ہے۔ محمد قاسم اسپیشل چلڈرن اسکول FC بلوچستان ساؤتھ کے طالب علم ہیں۔ ہاتھوں سے معذور یہ نوجوان دن میں علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں اور شام کو اپنی خودی میں نام پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جذبہ حب الوطنی کسی جسمانی طاقت کی محتاج نہیں ہوتی، یہ دلوں میں بستی ہے۔ وطن کی محبت تمام عشقوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے معذور محمد قاسم اپنے پاؤں سے پاکستان کا جھنڈا بناتے ہیں۔ محمد قاسم کا دل، ان کی روح سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں سمائی ہوئی ہے۔ محمد قاسم صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی مشکل آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اور ناظرین، رمضان المبارک کے دوران حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نگہبان رمضان پیکج کے تحت ملتان میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل بتائیں گے دلاور حسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج کے تحت نادار اور مستحق خاندانوں کی مالی معاونت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ڈویژن بھر میں رمضان بازاروں میں عوام کو سستی اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کی طرف سے جو ہمیں پیکج ملا ہے 10,000 روپے، یہ ہم غریب لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اقدامات ہیں ان کے جو ہم تک 10,000 روپے ان کے پہنچے ہیں، اس سے ہم خریداری اپنے گھر کے راشن کی ہے، بچوں کے کپڑے ہیں، مزدوری کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ انہوں نے مڈل کلاس لوگوں کو بھی دیے ہیں اور جو چھوٹا طبقہ ہے اس کو بھی دیے ہیں۔ شکریہ مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ اپارچونٹی دی ہے کہ ہم کچھ لے سکتے ہیں یا شاپنگ کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کمشنر ملتان عامر کریم خان نے رمضان بازاروں اور امدادی رقوم کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈویژن بھر میں مستحق اور نادار خاندانوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر 10,000 روپے کے امدادی پے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ ضلع ملتان میں اب تک 38,971 پے آرڈر موصول ہو چکے ہیں، جن میں سے 11,612 تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت امدادی رقوم کی بروقت فراہمی سے نادار اور مستحق افراد کے طبقے کی مالی معاونت حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ وزیراعظم کی جانب سے مستحق خاندانوں میں رمضان ریلیف پیکج کے تحت 5,000 روپے کی تقسیم کا عمل لودھرا میں بھی جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ رمضان المبارک میں غریب اور مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیے جانے والے رمضان پیکج کے تحت لودھرا کے مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والیٹ سے رقم ادا کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو 5,000 دیا جا رہا ہے بینیفیشری کو، وہ یہاں آ رہی ہیں بغیر لین سے، باعزت طریقے سے ہم سے لے کے جا رہے ہیں بغیر کسی کٹوتی کے۔ ضلع بھر کے مستحق گھرانوں کو ان کے رجسٹرڈ موبائل پر 9999 پر میسج آتا ہے، جس پر مستحق بینک آف پنجاب پر یا کسی بھی ریٹیلر سے اپنا میسج دکھا کر 5,000 روپے وصول کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی طرف سے رمضان پیکج نادار اور مستحق گھرانوں کو ان کا حق ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچانے سے عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف مل رہا ہے۔ میں وزیر اعظم کی طرف سے 5,000 ملے ہیں، عیدی دی ہے اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 5,000 ملے شہباز شریف عید نال بھی عید گزار کر۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم ریلیف پیکج سے رقم کی وصولی کے لیے عوام کو قطاروں میں نہیں لگنا پڑ رہا، ان کی مالی امداد ڈیجیٹل والیٹ سے ان کو منتقل ہو رہی ہے۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت تحصیل شکرگڑھ میں مستحق گھرانوں میں 10,000 روپے کے پے آرڈرز کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ اب تک 1,400 خاندان اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد رمضان۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غریب اور مستحق افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے رمضان نگہبان پیکج کو شکرگڑھ میں ریونیو سٹاف اور سیکٹری یونین کونسل نے عوام کی دہلیز پر پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت اب تک 1,950 رجسٹرڈ گھرانوں کو 10,000 روپے کے پے آرڈر ان کی دہلیز پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 16,000 مستحق خاندانوں کو پے آرڈر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو پے آرڈرز جو ہیں ان کی دہلیز پہ ڈیلیور کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے وہ کسی بھی فرینچائز یا قریبی ایجنٹ سے ان کو کیش کروا سکتے ہیں۔
लोगों को कैश की बरवकत और शफाफ तरीके से जो अदायगी है उसके लिए अलहदा से टीम्स बनाई गई हैं ताकि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी या उनकी कटौती अमल में ना लाए। पाकिस्तान ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमज़ान निगहबान पैकेज से गरीब और मुस्तक अफराद को उनका हक उनके दहलीज पर पहुँचने थे आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मोहम्मद रमज़ान, PTV न्यूज़, शकरगढ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन के तहत निगहबान रमज़ान पैकेज के जरिए बुरेवाला में भी मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10,000 रुपए के पे ऑर्डर्स की तकसीम जारी है। अब तक 22,000 ख़ानदानों को पे ऑर्डर्स उनकी दहलीज पर पहुंचा दिए गए हैं। तफसील जानिए मसूद आबिद से। माह सियाम में नादार और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से दिए जाने वाले एक निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10,000 रुपये की माली मावनत के पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तहसील बुरेवाला में सोशल इकनॉमिक सर्वे के तहत 27,000 रजिस्टर्ड मुस्तहिक़ घरानों में से अब तक 22,000 ख़ानदानों ने 10,000 रुपये के पे ऑर्डर वसूल कर लिए हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है, हमारी की 204 टीम्स हैं जो लोगों को डोर टू डोर जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो 27,000 थी उसमें से हम 21,000 तक कर चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ख़वातीन हज़रात का ये कहना है कि महंगाई के दौर में ये माली मावनत हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 रुपया मिले, मैं गवर्नमेंट का बहुत मशहूर हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ 10,000 रुपया माह रमजान से सानू दिता। तहसील भर के मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10,000 रुपये का पे ऑर्डर मिलने पर बैंक ऑफ पंजाब में अपने मोबाइल पर आने वाले कोड और पे ऑर्डर दिखाकर नकद वसूल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज मुस्तहिक़ और नादार ख़ानदानों को उनका हक बाइज़्ज़त तौर पर मिलने से रिलीफ मिलेगा। मसूद आबद, PTV न्यूज़, बुरेवाला। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर की तरह अलीपुर में भी रमज़ान सहूलत बाजार लगा दिए गए हैं। यहाँ पर खाने पीने की अशिया मार्केट से 25% तक कम कीमत पर दस्तयाब है। तफसील बता रहे हैं अलारिता बोसन। रमज़ान अल मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सहूलत बाजार लगाया गया है, जहां पर आम मार्केट से कम नरखों पर सब्जियों और गोश्त समेत दूसरे खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। सहूलत बाजार में 10 किलो आटे का थैला आम मार्केट की निस्बत 65 रुपए कमी के बाद 790 रुपए, चीनी 25 रुपए कमी के बाद 130 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सस्ता आटा मिल रहा है बेटे, मरियम नवाज के हम शुक्रगुजार। आटा, चीनी और परचून सब्जी के बेहतरीन स्टॉल लगाए हुए हैं और जो कि 10 से 15% आम बाजार से कीमतें कम हैं। इस सहूलत बाजार में खुर्दनोश की अशिया न सिर्फ सस्ती हैं बल्कि मियारी भी हैं। सहूलत बाजार में ताज़ा फलों और सब्जियों के अलावा दूसरे खाने पीने की चीजें वाफिर मिकदार और बेहतरीन मयार के साथ मौजूद हैं। सहूलत बाजार 27 रमज़ान अल मुबारक तक फाल रहेंगे। अवाम की बड़ी तादाद इन सहूलत बाजारों से खरीदारी कर रही है। यहाँ अवाम को कीमतों में रिलीफ मिल रहा है, जिससे जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी हो रही है। लाडिता बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। पाकिस्तानी निजात नौजवान ने दौलत मुश्तरका यूरोपियन यूथ अवार्ड 2025 अपने नाम कर लिया है। बरतानिया में मुकीम जुबैर जंजूनिया की लाखों तलबा तक तालीम की ऑनलाइन रसाई के लिए खिदमात हैं। तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। पाकिस्तानियों ने जहां दीगर शोबों में आलमी सतह पर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, वहीं तालीम के शोबे में भी पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। बरतानिया में मुकीम जुबैर जंजूनिया ने 10 साल कबल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसका मकसद दुनिया भर में बसने वाले तलबा को तालीम की आसान फराहमी है। इस प्लेटफॉर्म से 190 से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 60 लाख से ज्यादा तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। दौलत मुश्तरका ने हाल ही में जुबैर की तालीमी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें यूरोप के इलाकाई यूथ अवार्ड से नवाजा है। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, एजुकेशनल एक्सेस की तरफ काम करता हूँ। मुझे इस हफ्ते एक एजाज़ मिला कि मैं कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड रिसीव कर सकूँ यूरोप रीजन की तरफ से और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। आज 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल पाकिस्तान से हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हमारे नोट्स O लेवल, A लेवल और फेडरल बोर्ड में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारी यही टारगेट है इस अवार्ड के साथ भी कि हम ज़्यादा डीपली सपोर्ट कर सकें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को। जुबैर ने कॉमनवेल्थ डे पर मालबोरो हाउस बरतानिया में मुनक़िदा तकरीब में किंग चार्ल्स स्वयं को भी अपने प्लेटफॉर्म के जरिए तालीम के फ़रोग़ के हवाले से आगाह किया। जुबैर का तालीम की फराहमी का आज़म यकीनन दुनिया भर और बिलखसूस पाकिस्तानी नौजवानों के लिए हौसला कुन है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔ تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ آزاد کشمیر میں 23، گڑھی دوپٹہ میں 22، منڈی بہاؤالدین میں 18 اور اسلام آباد میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -5، استور مالم جبہ -1 اور گوپس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے T20 میچ میں 9 وکٹوں سے ہرا کر 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کرائسٹ چرچ میں کھیلے گئے میچ میں کیوی کپتان مائیکل بریسویل نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ قومی ٹیم 18.4 اوورز میں 91 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کے صرف 3 بیٹرز ڈبل فگر تک پہنچ پائے۔ اوپنرز محمد حارث اور حسن نواز 0، کپتان سلمان علی آغا 18، عرفان خان 1، نائب کپتان شاداب خان 3 رنز بنا سکے۔ خوشدل شاہ 32 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ عبدالصمد 7، جہانداد خان 17، شاہین شاہ آفریدی 1 اور ابرار احمد 2 رنز بنا کر چلتے بنے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جیکب ڈفی نے 4 اور کائل جیمیسن نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ نیوزی لینڈ نے 92 رنز کا آسان ہدف 10.1 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹم سیفرڈ 44 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فن ایلن 29 اور ٹم رابنسن 18 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل کو ڈنیڈن میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے ٹرافی کا ٹور جاری ہے۔ کراچی کے کارٹنگ ارینا میں ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ ریسرز نے ٹرافی کو اپنے ہمراہ پا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ٹرافی کو لاہور، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، پشاور اور اسلام آباد کی بھی سیر کرائی جائے گی۔ لومینارا نامی ٹرافی 29 مارچ تک ملک کے 11 شہروں کا سفر کرے گی۔ اپنے دورے کے دوران ٹرافی آج سے 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچائی جائے گی۔ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے ڈیوس کپ جونیئرز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ ملیشیا میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے انڈونیشیا کو 2-1 سے شکست دی۔ پہلے سنگلز میں ابو بکر طلحہ نے سوریانہ رافیل کو ہرا دیا۔ دوسرے سنگلز میچ میں انڈونیشیا کے گنوان میکا نے میکائل علی بیگ کے خلاف کامیابی سمیٹ کر مقابلہ برابر کر دیا۔ فیصلہ کن ڈبلز میں حمزہ رومان اور ابو طلحہ نے انڈونیشین جوڑی کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس فتح کے بعد پاکستان نے ITF ایشیا اوشنیا ڈیوس کپ جونیئرز کوالیفائنگ ایونٹ میں جگہ بنا لی ہے، جو قازقستان میں 19 سے 24 مئی تک شیڈیول ہے۔ اٹلی میں اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی۔ سنو شوئنگ میں مردوں کی 400 میٹر ریس میں پاکستان کے عبدالصبور نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ رومانیہ کے لانٹ پیٹرز نے دوسری جبکہ مکاؤ کے چی فونگ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کی 400 میٹر ریس میں مناہل نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ لٹویا کی ایڈریانا دوسری اور چائنیز تائپے کی یی جین چین تیسرے نمبر پر رہی۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان نے 5 گولڈ میڈلز جیتے ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی اور برائٹن اینڈ ہاو البیان کے درمیان مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا۔ ناٹنگھم فارسٹ نے ایپسوچ ٹاؤن کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ EPL کے میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ مینچسٹر کے اتحاد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میزبان مینچسٹر سٹی اور برائٹن اینڈ ہاو البیان کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ کھیل کے 11ویں منٹ میں ارلنگ ہالانڈ نے گول کر کے مینچسٹر سٹی کو برتری دلائی۔ 21ویں منٹ میں برائٹن کے پرویز استوپینان نے مقابلہ برابر کر دیا۔
39वें मिनट में उमर मरमोश ने मेज़बान टीम को एक मरतबा फिर सबकत दिलाई। तहम 48वें मिनट में सिटी के अब्दुल कादिर खुशानोफ ने फुटबॉल को अपने ही जाल पोस्ट गिरा दिखाकर मुकाबला बराबर कर दिया। पॉइंट टेबल पर मैनचेस्टर सिटी 5वें, जबकि ब्राइटन एंड हॉव अल्बियन की टीम 7वें नंबर पर है। लिवरपूल पहले, आर्सेनल दूसरे और नॉटिंघम फॉरेस्ट तीसरे नंबर पर है। ब्राजील के इटालियो फरीरा वर्ल्ड सर्फ लीग रिप कर्ल प्रो पुर्तगाल के राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड सर्फ लीग के तीसरे चैंपियनशिप टूर में इटालियो फरीरा ने अपनी 2 राइड्स में 16.43 पॉइंट्स हासिल करके राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। दिफाई चैंपियन अमेरिका के ग्राफिन कोलापिंटो और ब्राजील के फिलिप टोलेडो भी अपनी अपनी हीट्स जीतकर राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए। खवातीन में अमेरिका की कैटलिन समर्स 10.24 के स्कोर के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। She was coming from behind the whitewater, Sally. Beautiful first carve. आलमी नंबर 3 हिस्पानिया के कार्लोस अल्काराज का इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सफर तमाम हो गया। फाइनल में बरतानिया के जैक जैपर और डेनमार्क के होल्गर ब्योन मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खेले जा रहे इवेंट के सेमीफाइनल में जैक जैपर ने दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज को मात देकर पहली मरतबा मास्टर्स 1000 के फाइनल में जगह बनाई। जैपर ने अल्काराज के खिलाफ 6-1, 0-6 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। इस फतह के बाद जैक जैपर आलमी रैंकिंग में करियर बेस्ट टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। एक और सेमीफाइनल में डेनिश खिलाड़ी होल्गर ब्योन ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। ब्योन ने मेदवेदेव को 7-5 और 6-4 से जेर किया। फ्रांस ने स्कॉटलैंड को हराकर 7वीं मरतबा रग्बी 6 नेशंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पेरिस में खेले गए मैच में मेजबान फ्रांस ने स्कॉटलैंड को 35-16 से शिकस्त दी। फ्रांस ने जोराम मुफाना की 2, लुइस बैटले बियारी और थॉमस रामोस की 1-1 ट्राई की बदौलत न सिर्फ मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि पॉइंट्स टेबल पर 21 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रहते हुए टाइटल पर भी कब्जा जमाया। 5 मुकाबलों में फ्रांस की ट्राइज की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास था, जो उन्होंने 2001 में कायम किया था। इंग्लैंड 20 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल टॉप सीड एनसी यंग और सेकंड सीड वांग जी के दरमियान खेला जाएगा। बर्मिंघम में खेले जा रहे इवेंट के सेमीफाइनल में ओलंपिक चैंपियन जनूबी कोरिया के एनसी यंग ने जापान के इकाने यामागुची को शिकस्त देकर 4 सालों में तीसरी मरतबा फाइनल में जगह बुक की। एनसी यंग ने यामागुची को 21-12 और 21-17 से मात दी। खवातीन के सेमीफाइनल में सेकंड सीड चीन की वांग ने हमवतन यान हू को 21-10 और 21-19 से जेर किया। मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में कोरिया के किम वॉन हू और स्यू सोंग जै ने चीन के जी टिंग और रेंज योंग यू के खिलाफ 16-21, 21-13 और 21-13 से कामयाबी समेटकर फाइनल में जगह बनाई, जहां पर उनका मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और बागास मोलाना से होगा। वुमेन्स डबल्स के सेमीफाइनल में जापान की यूकी फुकुशिमा और मितियासो मोटो ने चीन की जियाफी फान और जियांग शुजियान को 21-16 और 21-17 से शिकस्त दी। फाइनल में उनका मुकाबला हमवतन नामी मात्स्योमा और चिहारो शीदा से होगा। स्पेन के मार्क मार्कोस ने अर्जेंटीना ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस जीत ली है। मार्क मार्कोस ने अपने छोटे भाई एलेक्स मार्कोस को मात देकर न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की, बल्कि स्टैंडिंग्स में अपनी बर्तरी भी बढ़ा दी है। मार्क मार्कोस ने बरकरफ्तारी का मुजाहरा करते हुए रेस के आगाज से ही सबकत हासिल की, जो आखिर तक बरकरार रही। उन्होंने मुकर्रर फासला 19 मिनट और 37.331 सेकंड्स में तय किया। एलेक्स मार्कोस 9.03 सेकंड्स के फर्क से दूसरे और इटली के फ्रेंचेस्को बनाया 3.859 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। इस कामयाबी के बाद स्टैंडिंग्स में मार्क मार्कोस के पॉइंट्स की तादाद 49 हो गई है। उनके भाई एलेक्स मार्कोस 11 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर हैं। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ।
शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।